CLA, RA, 10-point reference method for measurement of surface finish. We also saw RMS is equal to 1.11 into that of CLA. We studied lay, various types of lay, crisscross, multidirectional, radial, perpendicular, parallel, and various process acquiring that we studied. Then we also studied various surface finish values and triangle finish, and related processes for which are acquiring that. So this we were studying, and n values regarding that, roughness value in micron, and this triangle finish, the triangle symbol, that also we saw. So this actually this is very important. Incidentally, what happened, I'll tell you. This is made long back in 1995. After that, many people wrote the book, including your TechMac and other things. That in that also they have prepared such table, because what happens in earlier books, only these three were there, or these three were there. These four were not at one place. So that was first experienced by me, and in 95 we were making such notes that time, from your various textbook and handbooks and research papers and various things. And in nowadays, authors from my generation, they have included more of all these things. Means at one place you are getting many notes. So that was not available in the earlier. That time I had prepared that. Surface inspection by comparison method, that is to be studied now. How this surface inspection is done. So first is crude method, which is not quantitative, which is not quantified, but we can see the surface finish. We can judge the surface finish by comparison method. What is that comparison method? Touch inspection. Experienced person, from touch inspection, we can say that it is two triangle or three triangle finish. Even a person like me, I can also judge this, whether it is three triangle or two triangle or one triangle, or four triangle. That can be judged. So if you see in your metallography inspection in metallurgy, you have various grit paper. So 1600 grit paper is a glossy finish, which gives you four triangle finish. Then for 1200 this grade, this one finish of your paper, sandpaper, that will give you three triangle finish. Then 600 to 800 and that grade paper will give you two triangle finish, or that ranges actually one triangle and two triangle. 300 can give you even one triangle finish, and rough finish you will get by 60 or that 120 grit paper. Grit paper means what happens in 1 inch by 1 inch, this 1 inch by 1 inch area, you have those many sand particles. Okay. Alloxide paper is also there for non-ferrous. Aluminum oxide particles are there. Otherwise, carbon particles are there. So 60 grit means what? In 1 inch to 1 inch square area, you have 60 particles. Means that is a rough finish. If it becomes 120, then it is fine particle. So 300, 600, 1200, 1600 means it's a very, very fine particles that in one square inch they are fitted. तो जैसा आपका नंबर बढ़ेगा, इट मीन्स आपका नंबर ऑफ दैट साइज ऑफ योर सैंड पार्टिकल इज रिड्यूस, एंड जितना नंबर आपका ज्यादा रहेगा उतना सरफेस फिनिश अच्छा है. तो वो सैंड पेपर से हम लोग ये कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं. उसमें ऐसा एक मिल रहता है, रोटेटिंग मिल, उसको वो सैंड पेपर लगाते हैं, और आपको जो भी सरफेस फिनिश देखना है वो उसके अगेंस्ट हम लोग ऐसा दबाते हैं. तो व्हाट will happen, you will get the mirror finish, and later on that etching is done and you can see the you can do the metallography, you can see the microstructure of that particular material. That experiment you must. अच्छा बच्चों, आपका पिछला सेमेस्टर भी इसमें गया ना. मेटलर्जी कब हुआ रे तुमको? पिछले सेम में हुआ है क्या ये सेम में हुआ है बच्चों? मेटलर्जी
material science and metallurgy, whatever that name is given by Somaiya University now. Have you studied that subject? Hello, students? Anybody? Hello? Yes sir, same 3 में तो सेम 3 में, लेकिन आपको एक्चुअल करने को नहीं मिला ना, मतलब इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, दैट्स व्हाई यू मे नॉट बी एबल टू, आई फॉरगेट व्हेनेवर आई गिव एग्जांपल ना, तो ये तुमको वो पैंडेमिक में वो भी अपना मिस हो गया कि वो 2 साल मैंने लिया भी था वो प्रैक्टिकल, तो लोकमान सर आने के बाद कोई नहीं था लेने को, तो कोई नहीं है तो वो फिर वो आता है ना वो अपने ऊपर, कोई नहीं है तो तुम करो वो ऐसा, तो वैसा वो मैंने 2 साल लिया था। लोकमान सर ऑफ कोर्स गाइडेड अस वेरी वेल, मेटलोग्राफी वगैरह काफी कुछ सीखे हम लोग उसमें भी, क्योंकि वो पहले मैंने किया था मेरे एमटेक के प्रोजेक्ट के टाइप मेटलोग्राफी, तो वैसे ग्राइंडिंग मिल है अपने पास, तो उसको वो लगाते हैं पेपर, उसमें उसमें आपका कुछ ऐसा ये भी डालते हैं उसको सॉल्यूशंस, जो मतलब उसमें भी आपका ये रहेगा एब्रेसिव्स वगैरह, तो आपका ये मस्त निकलता है सरफेस, तो उससे आपका सरफेस फिनिश बहुत अच्छा आता है। ये कहने की बात ऐसे है कि ये चैप्टर हमारा वो मेटलर्जी का नहीं, ऐसे ही जाते जाते मैं थोड़ा सा जो रिलीवेंट है वो बोलता हूँ आपको। तो वो ये सरफेस फिनिश इंस्पेक्शन उससे हमको मालूम पड़ता है, टच इंस्पेक्शन से मालूम पड़ता है, देन विजुअल इंस्पेक्शन से देखने के बाद भी मालूम पड़ता है मिरर फिनिश से कि कितना ट्रायंगल फिनिश है, और इसका रेंज मालूम पड़ता है कौन से प्रोसेस से किया होगा। स्क्रैच इंस्पेक्शन नाम का भी एक है, तो स्क्रैच करके देखने का आप, तो वो स्क्रैच का जो जितना इंटेंसिटी, जितना स्मूथ सरफेस रहेगा उतना स्क्रैच ज्यादा डार्क आएगा, तो वो उससे मालूम पड़ता है स्क्रैच इंस्पेक्शन से। देन माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन से भी मालूम पड़ता है कि कैसा कितना फिनिश है। माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन में आपको वो अंदर का फेजेस क्लियरली दिख रहा है तो समझने का कि वो 3 ट्रायंगल फिनिश है, या उससे भी ज्यादा 4 ट्रायंगल फिनिश, बट दीज आर ऑल रिलेटिव एंड क्रूड मेथड, photographs of the surface, these are various methods. Micro interferometry is there, that interferometry technique we are going to see in the next semester. Interferometry is not there in the this semester, I think. Let us see the syllabus. I think it is not there, interferometry. If it is there, we will take it. I think it is in the next micro interferometer. Just I will check, by the way. This is going on. At the same time, parallelly, I will check the syllabus, whether interferometry is there in this. Because what happens is in our metrology elective, we take this. But let us see whether it is there for PE or not. Interferometry theory, I will check. Yes. अभी याद आया तो सामने देखना सबसे अच्छा है। ये है क्या, ये सरफेस टेक्सचर है, हाई इंटरफेरोमेट्री है, फ्लैटनेस मेजरमेंट, एनपीएल इंटरफेरोमीटर, तो ये इंटरफेरोमेट्री क्या है वो हम लोग टाइम में देखने वाले हैं। ओके, हाँ, तो ये इंटरफेरो माइक्रो इंटरफेरोमीटर टेक्निक से हमको उसका सरफेस का फिनिश मालूम पड़ेगा। देन रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी कितना है वो देख के भी हमको मालूम पड़ता है कि क्या फिनिश है। जितना सरफेस फिनिश अपना अच्छा है, जितना स्मूथ सरफेस फिनिश है, ट्रायंगल फिनिश जैसा इंक्रीज होता है 3 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल, उतना रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटेंसिटी आपका बढ़ जाता है। अगर आपका रफ फिनिश होगा तो मोस्ट ऑफ द रे विल बी वॉन्डरिंग देयर ओनली इन दैट रफनेस सरफेस, and only few will reach to the reflecting surface. So looking at or judging at reflected light intensity, you can see the surface finish. All these are rough method for surface inspection by comparison method. और बहुत से हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी, टच इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन, उसमें है ना आपके पास एक स्टैंडर्ड एक इंस्पेक्शन स्पेसिमन रहता है, 1 ट्रायंगल वाला कैसा दिखता है, 2 ट्रायंगल वाला कैसा है, 3 ट्रायंगल वाला कैसा है, तो उसके साथ आपका कंपैरिजन, आप जो सरफेस अंडर टेस्ट है उसको कंपेयर करके बोल सकते हैं ये 3 ट्रायंगल वाला है, देखो इट लुक्स लाइक दिस, इट इज हैविंग सेम फिनिश feel after finishing, if you touch the inspection or reflected rays, it is having same feeling of that particular specimen. तो वो specimen अगर 3 triangle है तो your job will be also 3 triangle finish, तो राउंड अबाउट आइडिया आपको आता है, बट एग्जैक्ट आइडिया वो CLA RMS ऐसा नहीं आएगा आपको, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू उसका देखने के लिए देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, so these are crude methods and certain instruments are there that we are going to see now. So there are so various instruments are given, profilometer, touch probe method, these are explained in the book, but two very popular,
that we are going to cover. They are Tomlinson surface method, which is fully mechanical, and the other one is Taylor-Hobson method that we are going to study. Okay. So these are very pet questions of your exam also. So let us not forget to take that. Okay. हाँ, तो ये देखते हैं हम लोग, इसका ये सिलेबस है, इसमें भी उन्होंने मेंशन किया है, क्या देखते हैं हम लोग. हाँ, अरे इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर सरफेस टेक्सचर, CLA एंड RF मेथड दैट वी कवर्ड. ये एक्चुअली सेल्फ लर्निंग टॉपिक बोला है ये सब. हाँ, ये पूरा सरफेस टेक्सचर है ना, सेल्फ लर्निंग टॉपिक बोला है. लेकिन मैं सेल्फ लर्निंग आपको नहीं देता हूँ, क्यों मालूम क्या, सिखाना जरूर है. एक बार सिखाएगा तो क्या बिगड़ता है, क्योंकि बच्चों का नहीं तो नहीं करेंगे सेल्फ लर्निंग बोले तो. या और कोरोना टाइम में तो सिखाना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे कहीं गए नहीं लाइब्रेरी में इधर उधर, तो अपने नोट्स उनको काम आ जाते हैं. तो आई डोंट थिंक वॉट एवर इज रिटन दैट सिलेबस में इंस्ट्रक्शन में मेरा सिखाने का काम कर देता हूँ. ये वो टाइम पे भी बोला था, ये क्या सेल्फ लर्निंग कैसा, ये मतलब सिलेबस में डालना ही डालना है, और सेल्फ लर्निंग क्या है. ठीक है. सो नाउ वी विल गो टू दैट write-ups again. Sorry, it's not that. कहाँ गया यार ये meteorology slides. Yes. So in that you see the Tomlinson surface meter हम लोग निकालेंगे. तो ये है आपका Tomlinson surface meter. ओके. स्लाइड जब मैंने दिया है ना आपको, ये बना के अपना PDF बना के, तो उसके नीचे ये गियर का एक इंस्ट्रूमेंट है. तो शुरू में हमको है ना जो तो थोड़े स्लाइड्स हमारे पास थे, हमने किए हुए, तो उसमें मैंने एडजस्ट करके ये सब किया. बाद में ये इतने पॉपुलर हो गए, लोग बोले अरे पहले तो चैप्टर वाइज क्यों नहीं किया. पहले तो हम लोग नए नए आए थे, तो सिखाने के लिए ये सब एक्सपेरिमेंट के तौर पे मेरे को बहुत नाच था. तो ये सब ये देखो, ये पूरा फिगर वगैरह ना एकदम मतलब टू द स्केल लगेगा आपको, जैसे मेरे जजमेंट से मैंने निकाला है वो टाइप कलर कोडिंग वगैरह करके. सो दैट टाइम I was the first guy to use in Somaya all this for all colors and this Yoshida that marker and all this. You can see these were that plastic slides, and that we used to show on the projector. जैसा मैंने बोला, ये स्लाइड दिखाते टाइम के जे सोमैया साहब आए थे, उन्होंने मुझे बड़ी शाबाशी दी थी, वो मैंने आपको बताया. तो वो टाइम के वो स्लाइड है, आपको भी बहुत काम आ जाएंगे. इज मेड इन 1995. नाउ 2021 is going on. Still see the clarity of that slide. Only that green color is slightly faint. Okay. अच्छा बच्चों, ये ग्रीन कलर का जो दिया है वो आपको दिख रहा है क्या? मेरे को जरा बोलो. मतलब मेरे को तो दिख रहा है, लेकिन वो हाँ सर, वो ग्रीन कलर का थोड़ा विजिबल है. हाँ, थोड़ा सा वो फेंट है, क्योंकि वो ग्रीन कलर यूज नहीं करना चाहिए, बाद में हमको समझ में आया. तो ये सेक्शन लाइन के लिए वगैरह ठीक है, लेकिन मेन हेडिंग है ना, ब्लू या इससे रेड से या इससे देना चाहिए, ये हमको बाद में समझ में आ गया. ठीक है. तो लेटर ऑन वी स्टार्टेड यूजिंग दिस डार्क ब्लू एंड ब्लैक ओनली. All other color have their shading. So this is actually the Tomlinson surface meter. So you can see in this figure, this red color surface is the surface irregularity we can see. ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे एग्जैगरेट किया है, ताकि आपको यहाँ पे उसका ये मालूम पड़े आपको. इतना रफ सरफेस कभी नहीं रहता है. अपना सरफेस कोई भी रहेगा ना, तो इतना रफ कभी नहीं रहेगा. बट योर इंस्ट्रूमेंट इज वेरी वेरी सेंसिटिव. अभी ये इंस्ट्रूमेंट फुल्ली मैकेनिकल लिंकेज है. तो कैसा काम करता है, तो देखो, ये मैंने 2 व्यू यहाँ पे निकाला है. ये फ्रंट व्यू है तुम्हारा ऊपर वाला, और ये नीचे जो है ना वो टॉप व्यू है. ओके. तो ये सब है ना, ये मैंने ऐसा ही नहीं निकाला ये इसके नीचे बराबर. बच्चों याद रखो, यू आर इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर, एंड इंजीनियर शुड ड्रॉ द व्यू जस्ट वन बिलो अदर. जैसे वो तुम लोगों ने शीट्स वगैरह निकाले है ना, some people have done the mistake, they have not understood what is the exact meaning of, but most of the people, 95% people have drawn the correct view. Okay. So here also these two views you can see and match. और ये फिगर आपने पहले करेक्ट निकाला ना, डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा. तो ये कैसा डिस्क्रिप्शन होता है, देखो अभी दिस इज द सरफेस विच इज टू बी जज, एंड द डायमंड टिप्ड स्टाइलस, ये जो है, ये जो स्टाइलस है, और प्रोब जो हम कहेंगे इसको, ये प्रोब इट इज इन टच विद दिस सरफेस. तो सरफेस पे इसका प्रिंसिपल कैसा है मालूम है क्या, कि ये जो प्रोब है या डायमंड टिप्ड स्टाइलस है ना, ये स्टाइलस इसके ऊपर घूमेगा. मतलब ये ऐसा स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा,
और ये स्ट्रेट लाइन पर ऐसा घूमेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन का आपको सरफेस रफनेस यहाँ पे स्क्रीन पे मालूम पड़ेगा। तो मतलब ये स्टाइलस को ये पॉइंटर कनेक्ट किया है, और ये पॉइंटर का जितना लेंथ ज्यादा है उतना वो मैग्नीफाई होता है आपका, बराबर है, लीवर प्रिंसिपल के हिसाब से। ये देखो, ये यहाँ यहाँ जितना भी है ना तुम्हारा सरफेस का एंडुलेशन, और व्हाट वी कॉल इट अप एंड डाउन, दैट पोर्शन, that is magnified here, and you can have the same trace on the glass, and here there are certain graduations on this glass tube in micron value. Okay, so this is one Tomlinson surface meter. And how it happens, तो ये स्टाइलस है ना, ये देखो, ये बॉडी है, ये दिस इज द बॉडी ऑफ योर टॉमलिंसन सरफेस मीटर। इसमें यहाँ पे एक ऐसा स्टैंड है, और ये तुम्हारा जो पॉइंटर है ना, ये ऐसा ऊपर नीचे, ये डायफ्राम में ऊपर नीचे ऐसा, ये इधर एक डायफ्राम है, इधर एक डायफ्राम है, इसमें ये बराबर ऊपर नीचे ऐसा घूमता रहता है। इट इज केप्ट इन टच विद द सरफेस। ये पीछे एक स्किड रहता है, ये स्किड यानी वो स्ट्रेट लाइन में पॉइंटर जाए, इसलिए उसका एक गाइड रहता है। दिस इज गाइड टू दिस डायमंड पे टिप्ड स्टाइलस। ओके, तो ये जब ऊपर नीचे होता है ना, ये देखो मैं दिखाया है, वर्टिकल मोशन ऑफ स्टाइलस ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज, ये ऊपर नीचे होगा। ये जैसे ही हम लोग इसको आगे पीछे करेंगे तो सरफेस इरेगुलरिटी को टच है तो वो ऊपर नीचे होगा ना। एंड वन थिंग इज देयर, इट इज दिस स्टाइलस इज constantly kept in touch with this body using spring। तो मतलब वो जरा भी छूटेगा नहीं, ये इसलिए जरूरी है, अदरवाइज वो स्टाइलस का इसके साथ कांटेक्ट कैसा होगा। तो अभी ये देखो, दो मैं व्यू आपको समझाता हूँ। ये जो है ना, ये स्टाइलस, इसका टॉप व्यू, ये सिलेंडर, ये देखो, ये समझ रहे हैं। हाँ, अभी ये जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है ना, जिसको एंड में पॉइंटर कनेक्ट किया है, वो ये सिलेंडर है, समझे बच्चों। ये देखो, ये वाला, इसलिए मैंने कलर कोड किया। ये पर्पल कलर का है तो ये भी पर्पल कलर का है, और ये जो है ना, ये सर्कुलर, इसका भी ये वाला है। और ये सिलेंडर अभी अभी है ना, ये पर्टिकुलर जो सिलेंडर है बॉडी का, इसका पॉइंटर का, ये भी 2 सिलेंडर से यहाँ पे ऐसा सपोर्टेड है। तो आप समझ गए, मतलब इसका जो मोशन है तुम्हारा डायमंड पे टिप्ड स्टाइलस का, वो डायरेक्टली आप, मतलब ये जब ऊपर जाएगा ऐसा, ये स्टाइलस जब ऊपर जाएगा तो व्हाट विल हैपन, दिस विल रोटेट दिस सिलेंडर। ये देखो मेरा ये देख लो आप, क्या कहते हैं, कर्सर, ये डायमंड टिप स्टाइलस जब ऊपर जाएगा तो दिस विल आल्सो रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अकॉर्डिंगली ये अपना पॉइंटर भी मूव होगा। सिमिलरली ये जब नीचे जाएगा तो ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो ये इस तरह से ये अपना ये पॉइंटर ऊपर नीचे होता रहेगा, क्योंकि एट द एंड दिस पॉइंटर इज कनेक्टेड हियर। और आप बोलेंगे ये यहाँ नहीं आएगा क्या, ये साइड में, तो उसको ये पॉइंटर के साथ टच करने के लिए और सपोर्ट के लिए 2 फिक्स्ड रोलर्स लगाए हैं, और उसका ये फ्रंट व्यू, ये देखो, ये ग्रीन कलर के सिलेंडर है ना, ये 2 ये फिक्स रोलर्स है, और ये बॉडी के साथ टच हुआ है। तो आप समझ गए बच्चों, कंस्ट्रक्शन समझ गए ना। यस सर। मैं तुमको मतलब ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, और मेरे देखो व्यूज कैसे मैच हो रहे। ये जो ग्रीन का है ना, ये सिलेंडर, इसके ये 2 टॉप व्यू में, ये जो पॉइंटर के साथ लगा हुआ ये जो सिलेंडर है ना, ये यानी ये वाला, ये देखो मेरा कर्सर देख लेना तुम लोग, कर्सर मैं क्लासरूम में सिखाता हूँ तो पूरा एक्शन के साथ में उधर जाके बोर्ड पे पूरा ऐसा हाथ लगा के वगैरह सब दिखाते। इधर वो मिसिंग है, अभी ऑनलाइन में करना है तो ये कर्सर तुमको दिखना जरूरी है। और ये जो तुम्हारा पॉइंटर स्टाइलस है वो ये है, और यहाँ पे आप वो मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो ये फुल्ली मैकेनिकल है तुम्हारा, ये क्या कहते हैं, टॉमलिंसन सरफेस मीटर। हाँ, तो ये बड़ा पॉपुलर है इसमें। तो दिस विल गिव यू द वैल्यू इन RA और RMS on this scale. There is a scale graduated on the smoked glass tube. Okay, तो स्मोक्ड ग्लास ट्यूब रहता है, उसपे वो तुम्हारा ये स्क्राइबर ने ये कर दिया तो उतना उसके ऊपर वो मार्क आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा है टॉमलिंसन सरफेस मीटर। लेकिन इससे भी एक एक्यूलर है, वो एक्यूरेसी देता है, वो है टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ, उसको कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक है, टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ। तो वो बहुत पॉपुलर है। उसकी कीमत है ना, कितना 15 साल पहले एक बार हम लोग परचेस करना चाहते थे, 1.5 लाख रुपए थी वो। उसमें आता है ना उधर का टेलर हॉब्सन
कहीं स्विस का ही लगता है वो यूरो डॉलर में वगैरह वो जो भी है कीमत अभी उसका उसको कन्वर्ट करके आना पड़ेगा ना। अभी तो महंगा हुआ होगा क्योंकि रुपीज अभी 85 कुछ चल रहे हैं, 1 यूरो फ्लक्चुएट होता रहता है। 89 तक गया था। मेरा बेटा अभी उधर है ना, वो बताता रहता है मेरे को हमेशा। तो ये सब उधर से अभी क्या इतना परचेज। वो एक बार सोचा था हमने टेलर हॉब्सन का, उसका कैटलॉग भी है मेरे पास। वो टाइम 1.5 लाख रुपीज में आता था वो। तो मैं वो टेलर हॉब्सन बोलते टॉमलिंसन सरफेस मीटर का हमने सोचा नहीं, क्योंकि टेलर हॉब्सन और भी एक्यूरेट है। ये फुल्ली मैकेनिकल है टॉमलिंसन सरफेस मीटर, बट स्टिल इट इज इन द यूज एंड स्टिल वेरी पॉपुलर, बिकॉज इसमें रिपेयरिंग का चांस मतलब क्या है, रिपेयरिंग का यही नहीं है, मतलब आपको जरूरत नहीं है ज्यादा। सो ऑल मैकेनिकल पार्ट्स आते हैं। एक बार आपने खरीदी किया तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ज्यादा नहीं है। तो आपको टेलर हॉब्सन मेथड हम दिखाते हैं, टेलर हॉब्सन मेथड। तो दैट इज अनदर वन। टेलर हॉब्सन कहाँ है भाई? जस्ट अ मिनट है बच्चों। टेलर हॉब्सन किधर गया? ये कौन सा ग्रुप में? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ ये एक है। ये देखो, ये अभी जो मैंने टॉमलिंसन सरफेस मीटर दिखा है ना, ये वाला, ये फिगर है। तो ये देखो, ये सिलेंडर के ये 2 व्यू, ये पॉइंटर का, ये सेम जो जो यहाँ पे सेम निकला है ना, वही मैंने सेम वहाँ पे निकाला है। कुछ ट्रेसिंग बेसिंग नहीं किया, सेम सामने रख के मैंने निकाला है। कलर कोडिंग में थोड़ा और अच्छा दिखता है। ये मेट्रोलॉजी फॉर इंजीनियर, दिस इज अ बुक, ELBS बुक, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी बुक। ओरिजिनल ऑथर है गाइलर एंड शॉर्ट बोल्ट, दे आर फ्रॉम ब्रिटेन। हम लोगों ने भी बाद में रेफर करके, RK जैन और IC गुप्ता ने भी अच्छे बुक्स लिखे, उसमें भी सेम फिगर आपको मिलेगा। तो ये मैंने अभी कवर किया, टॉमलिंसन सरफेस मीटर। हाँ, तो इसमें ये देखा है, ये सब दिया है। ये सब नोट्स ऑलरेडी तुम्हारे पास है अभी, ऑलरेडी तुमको दिया है। अगर किसी के पास नहीं है तो फिर से मैं दे दूंगा। एट द एंड ऑफ द ऑल सेशन आई विल गिव यू, सबके साथ बैठूंगा, किसके पास क्या है, किसके पास क्या है। देखो, ये CLA का वगैरह ये भी सब फॉर्मूले हैं। जैसे CLA का मैंने बोला, एरिया का भी एक फॉर्मूला है, लेकिन जनरली हम लोग वो हाइट वाला ही यूज करते हैं। तो ये हमने यूज किया है। देखो, हाइट वाला फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला। बाद में हम लोग, एक मिनट। हाँ, ये टॉमलिंसन सरफेस मीटर होगा, या ये रहा आपका टेलर हॉब्सन मेथड। तो ये रहा आपका टेलर हॉब्सन मेथड, स्कीमेटिक लेआउट ऑफ टेलर हॉब्सन मेथड। हाँ, इसमें क्या रहता है, इसमें एक ट्रांसफॉर्मर है, एक छोटा सा, और उसको तुम्हारा ये कनेक्ट किया है प्रोब, और ये सरफेस के ऊपर ये स्टाइलस है ना, ऐसा मूव होता रहता है। हाँ, ये सरफेस के ऊपर ये स्टाइलस तुम्हारा मूव होता रहता है, एक पर्टिकुलर हाइट से ऐसा ये मूव होता रहता है। इसका पीक वैल्यू पे हम लोग पहले जाता है। हाँ, इसके पीक वैल्यू पे ऐसा एक एक पर्टिकुलर हाइट पे हम लोग इसको सेट करते हैं। अभी क्या होता है कि तुम्हारा जैसे ही तुम्हारा ये गैप ज्यादा रहेगा, मतलब वैली वैली तुम्हारा ज्यादा रहेगा, तो इसमें से ये प्रोब और इसका जो ये है तुम्हारा डिस्टेंस, वो बढ़ता है। ये जो स्टाइलस है ना, एक फिक्स डिस्टेंस पे ऐसा घूमेगा, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टली। तो एक एक डिस्टेंस पे तुम्हारा मैक्सिमम पीक हाइट है ना, उस पे वो सेट रहेगा। और जो कम कम हाइट वाला है, यानी वैलीज जो है ना, वो एक मिनट बच्चों, एक मिनट प्लीज। हाँ, so that height changes. So what happens is, if that height is changing, then input of this input gap between this primary of the transformer, that is changing. So that is making effect in the secondary, and there is a one Wheatstone bridge structure here. So that is connected to oscillator. So when once it is oscillating,
If it goes down, then that current changes. If means as per the stylus on the surface, if this is going down, the stylus is going down, then it makes changes in the primary current. So primary current will make secondary current give signal to secondary current, and it is actually modulated or it is amplified later on. And it is given to the means actually what happens is analog to digital. The digital signal is given in some this one. Analog signals are also given, and it is shown on the meter. If it is converted to digital, even you can directly give the value in micron. Electronics like your calculator or this thing. So and also you can after amplifying, you can draw the graph of that also. It can be connected to computer also, and the graph is also okay, can be made. So this is more accurate actually, but costly stuff, because all electronic parts are involved, and layman like us, mechanical guy cannot repair it also if something goes wrong. हमको समझेगा ही नहीं अंदर के सब कंस्ट्रक्शन, वो सब टेलर हॉब्सन कंपनी के तो पूरे पेटेंट है, कर्सी ऑफ रैंक टेलर हॉब्सन डिवीजन। तो उनका ये कंपनी है टेलर हॉब्सन, तो उन्होंने उनका वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैं उसको आपका ये भी दिखाऊंगा आपको। तो एक टॉमलिंसन सरफेस मेथड और ये टेलर हॉब्सन मेथड, तो ये बड़े पॉपुलर है। इसमें दे गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ योर surface finish. I will show you just a minute how it looks. I have made some slides. Now I remembered. I will give you just a minute बच्चों। इनबॉक्स में जाना पड़ेगा मुझे, डी ड्राइव में था मेरा पीपीटीज, किधर गया? एक मिनट। ऑल पीपीटीज, so MQC PPTs. So here can you see limit? Yes, surface finish कहाँ दिख रहा है जरा देखो। हाँ, surface measurement यही लग रहा है, surface measurements। तो ये हाँ, ये surface roughness measurement, ओके। तो ये सब दिया, ये अभी भेजेगा तुमको। वो पहला वाला स्लाइड तो हैंड रिटन भेजा है, ये भी भेजेगा अभी। सरफेस रफनेस वगैरह ये सब इसमें दे दिया हम लोग। So you can study that later on. Already I have taught all these things. ये last time किया था पूरा टाइम का, ये सब वो उसके दे 10 point method वगैरह, CLA value, RMS value. Now this is one profilometer, that is, then this is also that profilometer, contact type. Then this is that Tomlinson surface meter। नो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है इधर, कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो ये स्लाइड तुमको दिया है तो एज इफ यू आर गेटिंग द एवरीथिंग। टेलर हॉब्सन टेलीसर, ये देखो यहाँ पे जो हो रहा है आर्मेचर का, ये जो है इसका जो इनपुट है, या जो आर्मेचर यहाँ पे जो टच होगा, ये जो तुम्हारा टच प्रोब है, तो इसका जब डिस्टेंस बदलेगा सरफेस पे इसमें, तो यहाँ पे जो करंट सेटिंग है ना प्राइमरी में, वो बदलेगा। तो सो ऑल्सो इट विल गिव एंड ई स्टेप्ड एक स्टैंपिंग रहता है अंदर, तो वो सेकेंडरी है। तो ये भी बदलेगा, और ये बदलने के बाद वो सिग्नल जो चेंज है दैट इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, एंड यू विल गेट demodulated this one signals also here. The instrument also gives the same information as the previous instrument, but much more rapidly and accurately. That which instrument earlier, that is the Tomlinson. Compared to Tomlinson, they are giving here. So its construction and working is also prepared in this Corona time. I had prepared that. So that is also given. So this also I will give you. This entire bunch I will give you. So I think is now 11 fine. So now